हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त नाइला एंड you're वाचिंग प्रोग्राम टूरिस्ट मैगजीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से रूबरू कराते हैं, टूरिज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं और इसके साथ साथ डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की भी सैर कराते हैं। सो यू वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ टूरिस्ट मैगजीन। कश्मीर की खूबसूरती को दिन के उजाले में देखकर तो सभी तारीफें करते हैं, मगर कश्मीर रात में भी बहुत खूबसूरत नजर आता है। इसी बात को जहन में रखकर हम डल लेक के किनारे बुलवार्ड पर खड़े हैं और आज हम आपको दिखाएंगे एन इवनिंग इन कश्मीर। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। कश्मीर में सनसेट के साथ ही कश्मीर की शाम शुरू होती है। फिर अगर सनसेट का मंजर डल झील के किनारे से देखा जाए तो उस मंजर के क्या कहने। कुछ सयाह तो इस सनसेट को देखने के लिए घंटों डल लेक के किनारे इंतजार करते हैं। कश्मीर के इस सनसेट के फौरन बाद आकाश में फैले सुनहरे रंगों और मध्यम होती रोशनी में लहरों और शिकारों की हरकत पूरे डल लेक को किसी पेंटर के कनवास में तब्दील करते हैं। यही वो वक्त होता है जब कश्मीर की सुहानी शाम शुरू होती है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। शाम शुरू होते ही एक तरफ शाहराहों पर चलती गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन होती हैं और दूसरी तरफ मुगल बागात की लाइट्स भी ऑन होकर मुगल बागात का मंजर ही बदल देती हैं और दिन के उजाले में सूरज की तपिश ठंडी हवाओं में बदल जाती है। और ऐसे में होटलों और हाउस बोट में रहने वाले सयाह शाम कश्मीर का नजारा करने और ठंडी हवाओं का मजा लेने के लिए बाजारों का रुख करते हैं। ऐसे में अगर सयाह डल लेक के आसपास रुके हों तो इस टाइम पर वो चहलकदमी करने के लिए बुलवार्ड पर जरूर निकलते हैं। शाम कश्मीर की इस फिल्मिंग के दौरान टूरिस्ट मैगजीन की टीम एक हाउस बोट में पहुंची, जहां हमने कुछ टूरिस्ट से और बातों के अलावा कश्मीर के इवनिंग एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा। How did you plan your visit to Kashmir? There is a motorbike ride right across Australia from east to west, and that happens each year, and it raises money for an Australian charity. And the man who organises that thought it would be a wonderful thing to come to India and do the same thing. So we now have a great Indian ride, which will go from the north to the south each year, and it will raise a little bit of money for Plan India, and ideally for the education of young girls in India. Yeah. When did you arrive in Kashmir? About 3 days ago. So we've done some great sightseeing already. So I think Sonmarg, up to the glacier. I'm not sure where the glacier was, but we had a wonderful look around. We've been to a mosque,
to some of the sights of the city. We've paddled around Dal Lake. It's been wonderful. Right. Srinagar city is famous for its lakes, houseboats, and gardens. Obviously, yeah. What are your impressions about this place? It's wonderful. It's wonderful. It's so exotic. Australia is, I don't know, it's quite bland to us. It's very familiar to us, but we come here and we see just exotic sights everywhere. It's wonderful to see a mix of cultures, different people, different sights. It's a feast for the senses, I think. In Australia, the advertisement is for incredible India, and it really, really is. It's just amazing. And what about the houseboat? You are staying here. How's your experience of having stay in houseboat? This is actually our second houseboat. We've been in Zandari Palace, and now we're here in this houseboat. And this is a very big boat, but very luxurious and lovely. We really enjoy the experience of being able to sit on the lake, and it's very, very tranquil and a bit away from the beeping horns of, of the roads. Kashmir has 4 seasons, and this time it's autumn in Kashmir. Yeah. Would you like to visit in winter also? I don't think so. I hear it's very cold. But no, I think I would. The weather here at the moment is perfect. Don't you like snow? I like snow. I don't know. It's very good to ride a motorbike in though. But we imagined that the weather would be a lot cooler here, so we brought a lot of warm weather gear, and yet the weather has just been perfect. Every day is beautiful. I think you people are our real ambassadors who can put a word in anybody's ear back home and say, go to Kashmir, it's a real wonderland. I mean, will you be doing that? Absolutely, absolutely. But not my wife, but everyone else. हाउस बोट की कार्विंग और सजावट से सैयाह काफी इम्प्रेस थे। उन्होंने दिल खोलकर हाउस बोट की तारीफ की। Are you here for first time or you have been coming here? I've never been to any part of India before, so this is a great experience for me. Oh, yeah. That's great. And for how long have you been here? We've been here 3 or 4 days. I can't remember exactly. We've been so involved in everything to do with Kashmir, and it is such an exotic location for us to come. In Australia, we're a very different culture, obviously, and the word Kashmir invokes all sorts of thoughts of interesting, unexplored places, and it's just so fascinating, so very good for us to come here. And what are your impressions about Dal Lake? Because Dal Lake is famous across the globe. The lake, the lake is mystical. It is quite beautiful, especially in the morning, at the dawn and at dusk, at the night time. The light is very special. We've got keen photographers in our group, and it's a real opportunity to get some wonderful pictures. Each picture you take looks like it should be on a magazine. What about people of Kashmir? I mean, you must have interacted with the local Kashmiris. How did you find them? I find them wonderful. It's all a little bit scary coming to us because it's a different culture and the people are all different, but we've been really overwhelmed by the kindness and even be referred to as brothers, which is, and quite genuinely, and people going out of their way to look after us. It's been fantastic. Right. You're from Australia. How do you differentiate between life in Kashmir and in Australia? Absolutely different. I go home, it might be very boring. A very different culture. I say that in one way, but obviously we're very much the same in that we're all family people and everybody's involved with their family and their business and everything else. But I think wherever you go, basically people are the same. People here are very good people, and people are very good back in Australia. So. And what about environment? I mean, how do you explain the environment of this place? Well, I mean, the lake is an example of how an environment can be maintained, because this expanse of water and this number of people who are using it daily, you would reasonably expect that there would be pollution in the water, but that's not the case. The water is very, very clear. It's a credit to the community here that it is kept in such a beautiful state. Kashmir looks beautiful during days. Yes. How do you like Kashmir in evening? The evening is the best part, because after the days, even though it's this time of year, it's been a little bit warm, and in the evening you get that beautiful cool breeze across the lake, and it's just beautiful. शाम के वक्त अंधेरा छाने के साथ ही हर तरफ लाइट्स ऑन होती हैं और ऐसे में बाजारों और शहराओं का मंजर ही बदल जाता है। इस दौरान डल लेक में हाउस बोट्स के साथ साथ हारी पर्वत फोर्ट भी बिजली की रोशनी में अपनी तारीखी हैसियत का एहसास दिलाता है। You must have interacted with the local Kashmiris. Yes. How did you find them? They are peaceful, they are helpful. Really, they are one of the best guys I
I have ever seen. Besides visiting around, did you try Kashmiri cuisine? I tried a Kashmiri. What means Kazini? What did it mean? Kashmiri dish. Yes. Kashmiri food. I what do you call it? Bazwan. Bazwan. I tried. I invited to marriage of my friend, and it was very nice. The tradition here is very, very nice. It is a nice experience. And you must have seen different evening atmosphere in your country. What are your impressions about evening atmosphere in Kashmir? It is quiet here. It is like Europe. After 8 o'clock, you will not find anybody. It is quiet. It is cool. You can really at night take fresh air. And what about climate? What about weather? In this season, I came in September. It is excellent, really. I recommend Kashmir for all visitors and tourists. बुलवाड़ से करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ जबरवंत पहाड़ी के दामन में चश्मशाही वाक़ा है। ये बाग शाम के वक्त रंगीन लाइट्स में कुछ अलग ही नज़ारा पेश करता है। शाम के इस मंजर में चश्मशाही का बाग रंगीन रोशनियों में बेहद हसीन दिखाई देता है और ऐसे माहौल में कुछ लोग पहले की गुजरी शामों का मुआजना इस शाम से करने लगते हैं और मन ही मन में गुनगुनाने लगते हैं। न जाने क्यों लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी। कहाँ से आप? I belong to Dehradun. मुझे बताइए कश्मीर विजिट करने के लिए किसने मोटिवेट किया? Kashmir, just we have heard from everywhere that is heaven on earth. So just to see the heaven, we are here, and to bring, I've got all my families also here, just to visit this place. For how long have you been here? It's been 2 days. Abhi we'll be continuing for 3-4 more days, but we are here for 2 days. कश्मीर एक हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन विजिट करना आपको कितना पसंद है पर्सनली? Personally, I prefer hill stations. I generally don't like plains or other areas or sea areas and all. Personally, my favorite is hill station. So I generally prefer to bring my families or myself to hill stations and all. As a tourist, do you enjoy more on mountains than in plains? Yeah, definitely. I do. अच्छा, ये मुझे बताइए, अभी आप रेस्टोरेंट आई है, जब भी कोई टूरिस्ट कश्मीर विजिट करता है, दे ऑब्वियसली लुक आउट फॉर रेस्टोरेंट्स वेयर दे कैन ईट कंफर्टेबली एंड हाइजीनिकली. व्हाट डू यू सी? Yeah, definitely you have brought out a very good point and important point. Wherever somebody goes to visit some place, this is the I feel 2 things are most important. One, food joints, and the second is the transportation, and obviously third point, accommodations. If these 3 facilities are available at any tourist destination, definitely everybody would love to go to that place where all these 3 things are combined together. So like this place, we were looking for a place where we can have a good food. We had come for Chashmeshahi, and we saw that there is a Zyka restaurant which is looking good, so we just entered inside. Did you try Kashmiri cuisine? Or you keep searching for the food of your own No, I choice? definitely try to search for foods of different religion. Today also we ordered one yakni, kudo yakni. So we have ordered one that. Let's see how is that. I've not tasted yet, but let's see how is that. दिन में तो आपने कश्मीर को देखा ही देखा, अभी आप नाइट्स में, अभी आप लाइट्स में कश्मीर को देख रही हैं। मैं जानना चाहूँगी इवनिंग एटमॉस्फेयर कैसा लगा? इवनिंग का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, एंड स्पेशली जब आप कश्मीर में आ रहे हैं घूमने के लिए, तो अपनी फैमिलीज़ के साथ एक इवनिंग राइड लेना है। स्पेशली आप गार्डन में आ रहे हैं एंड डल लेक जैसा नज़ारा मिल जाए आपको, तो फिर उस पर सोने पे सुहागा वाली बात है। खाया पिया और घूमा फैमिलीज़ के साथ, इससे और बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली वी आर एंजॉइंग दैट मोमेंट। कश्मीर की इस हसीन शाम में जहां हाउस बोट्स का मंजर बेहद हसीन और दिलचस्प होता है, वहीं कुछ सयाह शिकारों में सवार होकर डल झील की सैर पर निकलते हैं और कुछ सजे सजाए हाउस बोट्स का रुख करते हैं।
दरअसल डल लेक में मौजूद हाउस बोट्स एक तैरते महल की तरह होते हैं। इनमें मौजूद शैंडलियर्स और वुड कार्विंग के बारीक डिजाइन सयाहों को हैरत में डालते हैं। जहां एक तरफ हाउस बोट्स में रहने वाले सयाह हाउस बोट्स के अंदर ही ठंडी हवाओं का मजा लेते हैं, वहीं कुछ सयाह मकामी लोगों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। अक्सर देखा गया है कि शाम के वक्त टूरिस्ट मार्केट्स में चहलकदमी के साथ साथ कॉफी शॉप्स, आइसक्रीम पार्लर्स और रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं। आइए देखते हैं कैसी चहल पहल रहती है। कश्मीर के रेस्टोरेंट्स में हर तरह के पकवान मयसर रहते हैं। यहाँ नॉनवेज और वेज फूड की बेहतरीन वैरायटीज के साथ साथ कश्मीर का रिवायती वाजवान भी दस्तयाब रहता है, जिससे सयाह बहुत पसंद करते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ इंद्रानी। कहाँ से आप? हम असम गुवाहाटी से आए हैं। कश्मीर पहले कभी आए हो? नहीं, पहली बार आए हैं। कश्मीर आने के लिए कैसे प्लान किया आपने? हम लोग एक्चुअली टी गार्डन में हस्बैंड काम करते हैं, सो ईयरली हम लोग का 1 महीने का वेकेशन होता है, तो तभी हम लोग प्लान किया इस बार कश्मीर आएंगे। Nowadays, most of the tourists come through package. I mean, did you manage your trip through package or individual? No, individual. We have come through individual because my sister-in-law stays in Jammu, so from Jammu we came through car, private car. और अभी तक कश्मीर में क्या कुछ देखा, क्या कुछ ने आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया, कितना एंजॉय किया और यहाँ की खूबसूरती ने आपको कितना प्रभावित? खूबसूरत ने हम लोग को अट्रैक्ट किया है। तो हम लोग अभी तो हाउस बोट पे रहे, वहाँ पे भी एंजॉय कर रहे हैं। फिर आज हम लोग गए थे सोनमार्ग गए थे, वहाँ पे एंजॉय किया, हॉर्स राइडिंग किया है, अच्छा लगा है बहुत ज़्यादा। आपने श्रीनगर में एंजॉय किया और सोनमार्ग? श्रीनगर तो कल घूमेंगे, लेकिन अभी तक जितना घूमे हैं अभी तक अच्छा लग रहा है। हाउस बोट में जो एनवायरनमेंट है, बाकी यहाँ लोकल जो अच्छा लग रहा है घूम के, वो अच्छा लग रहा है। घूमने फिरने के साथ अगर बंदे का उसकी पसंद का खाना मिले तो बात ही बन जाती है ना, बंदे का मूड ही सेट हो जाता है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आप यहाँ इस शॉप पे आई हुई है, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे क्या स्नैक्स आपने ट्राई किया और कैसा लगा? अभी तक तो हमने वो स्वीट डिश ट्राई किया था, जो केक पेस्ट्री है वो कल किया था, वो अच्छा लगा है। आज हम लोग थाली लेंगे सोचा है, जो यहाँ का सुना है अच्छा है, थाली लेंगे और पिज्ज़ा लेंगे। कश्मीरी कुजीन ट्राई किया? नहीं किया है, लेकिन ट्राई करेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे बताइए दिन में आप कहाँ कहाँ विजिट किया, कि कौन कौन सी प्लेस आपने दिन में देखी? दिन में तो हम लोग सोनमार्ग गए थे और अभी पूरा यहाँ से वहाँ पूरा वॉक किया है। चलिए, दिन में तो आपने एंजॉय किया, शाम के टाइम पे, अभी के टाइम पे मैं जानना चाहूँगी इवनिंग कैसी लग रही है, लाइट्स में आपको कश्मीर कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत कूल है, लोग भी बहुत हेल्पफुल है, अच्छा लग रहा है। Here we take a short musical break, but don't go anywhere, we'll be right back. देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। के हम सफर छत के घर तो चले, झूमती आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की।
पार कर दिए, आंखों आंखों से जो मैंने तुमने पिए, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, होश तो अब तलक जाके लौटे नहीं, और क्या ला रही है सुबह प्यार की। रात के हम सबके घर को चले, झूमते आ रही है सुबह प्यार की। देख कर सामने रूप की रोशनी, फिर लुटी जा रही है सुबह प्यार की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यू आर वाचिंग प्रोग्राम टूरिस्ट मैगजीन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं शाम कश्मीर। तो आइए प्रोग्राम का सफर जारी रखते हुए आइए देखते हैं शाम कश्मीर के कुछ और नज़ारे। कश्मीर की शाम कश्मीर के दिन से मुख्तलिफ होती है। बाजारों की रौनक के साथ साथ सयाहों की शॉपिंग का सिलसिला भी शुरू होता है। इसलिए कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता डीलर्स अपनी दुकानों को देर गए तक खुला रखते हैं और यूं बाजारों की चहल पहल और रंगीनियों में इजाफा होता है। ऐसे एटमॉस्फेयर में कुछ सयाह चहलकदमी के साथ साथ विंडो शॉपिंग भी करते हैं और कुछ सयाह कश्मीर के बड़े बड़े शोरूम्स में रखी हुई कश्मीरी दस्तकारी के नमूनों को देखने और खरीदने में लग जाते हैं। शाम के वक्त शोरूम्स में रखी हुई कश्मीरी दस्तकारी के नमूने, पेपर मैशी, कालीन, शॉल और ज्वेलरी के आइटम्स सयाहों की शॉपिंग की खास अट्रैक्शन होती हैं। झूमती आ रही है सुबह प्यार की। अभी तक कश्मीर में क्या कुछ देखा आपने? अभी तो डल लेक देखा सिर्फ, बाकी का कल प्रोग्राम करेंगे, गुलमर्ग वगैरह जहाँ भी जाना होगा। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, आई एम वेरी एक्साइटेड। कश्मीर के आने से पहले कश्मीर के बारे में क्या कुछ सुना था आपने? जितना जैसा हम लोग सुनते थे कि वो हिल स्टेशन है, जो भी देखो मतलब एकदम एक्साइटिंग था हर चीज़। तो लगता था कभी पता नहीं हम लोग भी जाएंगे वहाँ तो कैसा फील होगा। आज एकदम एग्जैक्टली यहाँ आके एकदम बिलीव नहीं हो रहा है। दिन में तो आपने एंजॉय किया होगा, शाम के टाइम में मैं जानना चाहूंगी अभी इस टाइम पे कितना एंजॉय किया? इस टाइम में कश्मीर कैसा लग रहा है आपको? एकदम जबरदस्त। अच्छा ये बताइए, अभी आप शॉपिंग कर रही थी, मैं जानना चाहूंगी किस तरह की शॉपिंग करना आप पसंद करती हैं? तो मैं भी कुछ 100 पीस मतलब ऐसा चीज़ देखना चाह रही थी जो हमारे वहाँ नहीं मिल रहा हो। जबकि ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ जो वहाँ है वो यहाँ, तो फिर वो लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे कश्मीरी के नाम पे जो खास जो कश्मीर से स्पेशल रिलेटेड हो वो चीज़ लेने में ज़्यादा, जैसे कि अभी मैं एक सूट लेके जा रही हूँ यहाँ से, स्टॉल वगैरह देखी कश्मीरी पश्मीना का, ये सब। राइट। और कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के लिए भी बहुत फेमस है। आपने काफ़ी आइटम्स हैंडीक्राफ्ट के देखे होंगे, मैं जानना जस्ट वहीं देख के आ रही हूँ। वो मान लो शिकारा से गए थे, वो लोग पूरा दिखाया कर, 1 घंटे से वहीं बैठी थी 1 आवर से, काफ़ी सारा मटेरियल देखी। इवनिंग एटमॉस्फेयर की इस एक्टिविटी के दौरान कुछ सयाहों को हल्की सी ठंड का एहसास भी होता है। गो कि इस ठंडी ठंडी हवा में बुलवार पर चहलकदमी करना सबको अच्छा लगता है, मगर फिर भी कुछ सयाहों को शॉल ओढ़ना अच्छा लगता है। What have you heard about Kashmir? Good selling men, yeah, good sellers, and the most Muslim place. So it's nice to visit and see and feel the energy, and that's it. And for how long have you been here? Now, well, we came yesterday morning, yeah. And what do you explore in Kashmir so far? It's nice people, beautiful lake, beautiful concept of the boathouse, and I haven't been in the local market, around already, but we'll go there tomorrow, and it's nice. और शहरों की तरह शाम के वक्त कश्मीर की सड़कों पर दौड़ती मोटर कारें जहां खूबसूरत मंजर पेश करती हैं,
वहीं शहराओं और मार्केट प्लेसेस के फव्वारे रंगीन लाइट्स में मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाते हुए खूबसूरत लगते हैं। इस तरह के रंगीन लाइट्स वाले फाउंटेन्स डल लेक में भी नस्ब किए गए हैं, जो शाम के वक्त लेक की रंगीनियों में इजाफा करते हैं। शाम में कश्मीर के नजारों में जहां एक तरफ नगीन लेक के किनारे पर वाक़ा नगीन क्लब रोशनियों में दुल्हन की तरह सजा रहता है, वहीं नगीन लेक से हारी पर्वत का किला भी रोशनियों में नहाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। इन सारे खूबसूरत नजारों के बीच कश्मीर की जियारत गाहें भी शाम के वक्त बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। कहीं चहलकदमी और कहीं शॉपिंग की इस गहमा गहमी में कुछ एग्जीबिशंस भी कश्मीर के इवनिंग एटमॉस्फेयर को खूबसूरत बनाते हैं। ऐसे में इसी गहमा गहमी के बीच रात शुरू होती है और सब लोग अपने अपने घरों, होटलों और हाउस बोट्स का रुख करके शाम में कश्मीर को अपनी यादों में समेटते हैं। अजीब थी इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल आईडी है ddktouristmagazine@gmail.com। Now is the time to say all of you goodbye. Keep smiling, keep enjoying and stay tuned to DD Kashmir. सका प्यार कब हम छुपाए तो क्या, सब समझ पा रही है सुबह प्यार की रात के